شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک شادی شدہ بانجھ بغیر بچوں کی عورت کی ایک کہانی کے بارے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس شادی شدہ عورت کی کوکھ سے بچے نہ ہو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ عدنان بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھے۔ یہ رشتہ مناسب تھا۔ والدین نے قبول کر لیا اور میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ان کے ہمراہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ عدنان مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ ساس نند تھی نہیں، ہماری توجہ بس ایک دوسرے کے لیے تھی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ میری سہیلیاں جب عدنان کو دیکھتی کہتی میاں پر نظر رکھا کرو، ان کی پرکشش شخصیت پر کوئی اور نہ مر مٹے، یوں بھی مرد کا بھی اعتبار نہیں۔ تب میں غرور سے کہتی مجھ جیسی انہیں اور کوئی نہ ملے گی۔ یہ غرور اللہ کو پسند نہ آیا۔ میں بھول گئی کہ عورت کی خوبصورتی بچوں سے ہوتی ہے۔ جس عورت کی گود سونی ہو وہ داغ لگے چاند جیسی ہوتی ہے۔ شادی کو 10 برس گزر گئے، بچوں کی نعمت سے گود خالی رہی۔ شروع میں ہم دونوں کو امید تھی کہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتے گئے۔ میں اداس اور وہ چپ چپ رہنے لگے۔ شادی کے 10 برس بعد ایک روز کہنے لگے چھوٹے شہر میں دل نہیں لگتا، بڑے شہر کی رونقیں بڑی ہوتی ہیں، یہاں رشتہ دار بھی تانا دیتے ہیں، زندگی میں بوریت سماتی جا رہی ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے نقل مکانی کر لیں اور کسی بڑے شہر میں جائیں۔ ایک دن دفتر سے واپس آئے تو کہا میں اپنا کاروبار کراچی شفٹ کر رہا ہوں۔ ایک دوست کے توسط سے وہاں آفس مل گیا ہے۔ میرا جی نہ چاہتا تھا کہ اپنے شہر اور میکے والوں سے دور جاؤں، مگر شوہر کی خواہش کے آگے بے بس ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ ماحول بدلے گا تو ہماری زندگی میں نئے رنگ بھر جائیں گے۔ شروع میں ہم ایک پرسکون علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ، کام کرنے والی ملازمہ اور ملازم لڑکا بھی بآسانی مل گئے، کیونکہ قریب ہی کچی آبادی میں غریب کنبے آباد تھے۔ ملازمہ ایک 25 سالہ خوش شکل عورت تھی جو بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی۔ صبح سویرے آ جاتی اور شام تک میرے پاس ہوتی۔ وہ کام بھی اچھا کرتی اور باتیں بھی چٹپٹی کرتی۔ اس ملازمہ کا نام نوشین تھا جسے میں نوشی کہتی تھی۔ ایک روز نوشی آئی تو کہا بی ایک بات کہنی ہے مگر ڈرتی ہوں اور بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ ڈرو نہیں، جو کہنا ہے کہہ دو، صاحب کو پتا چلا تو میری شامت نہ آ جائے۔ نوشی کے اس جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دو، صاحب کو کیوں کر پتا چلے گا جب تک میں ان کو بتاؤں گی نہیں؟ بتاؤ تو کیا بات ہے؟ کل شام جب میں کام کرنے کے بعد نکلی تو میرا شوہر آپ کے گھر کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، آج تمہیں بازار لے جانا ہے، مجھے تنخواہ کے علاوہ بونس بھی ملا ہے، تمہیں نئے کپڑے اور جوتے دلوا دوں۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ ہم طارق روڈ گئے۔ وہاں فٹ پاتھ پر کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے لیے 2 جوڑے منتخب کر رہی تھی کہ ہمارے بالکل سامنے صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت فیشن ایبل لڑکی کار سے اتری۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ زیورات کی ایک بڑی دکان میں چلے گئے۔ صاحب نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں دکان کے شیشے سے ان کو دیکھنے لگی۔ صاحب نے سونے کی انگوٹھیاں نکلوائیں اور ایک انگوٹھی پسند کر کے اس لڑکی کی انگلی میں پہنانے لگے۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے فوراً پلٹ آئی۔ شوہر کو بتایا۔ تب بابر نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ بات ہرگز مت بتانا، ورنہ ان کا صاحب سے بہت جھگڑا ہو جائے گا۔ کیا بیگم یوں ہی اندھیرے میں لٹتی رہیں گی؟ میں ان کو ضرور بتاؤں گی۔ تب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کم عقل ایسی باتوں سے میاں بیوی میں پیار ختم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ تمہاری بیگم صاحبہ کا گھر اجڑ گیا تو تم ذمہ دار ہوگی نا۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ بابر صحیح کہتا ہے، اگر آپ کے شوہر کی جگہ بابر مجھ سے ایسا دھوکہ کرتا اور مجھے علم ہو جاتا تو کیا میں اسے بخش دیتی؟ رات بھر پریشان رہی۔ صبح فیصلہ کیا آپ کو ضرور بتاؤں گی۔
ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बचाने की तदबीर कर लें। ऐसा ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए। जहां मैं नौशी की मशकूर थी वहां सख्त सदमे में भी थी। सोच भी ना सकती थी कि अदनान मुझे धोखा दे सकते हैं। गुमान हुआ कि जरूर नौशी की आंखें धोखा खा गई हैं। रात को अदनान घर लूटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। वो घबरा गए। उनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। हकलाने लगे। जब मैंने वसूक से कहा कि अगर सच न बताया तो कसम खाती हूं कि जान दे दूंगी, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। वो मुझे पसंद आ गई। मैंने इससे शादी कर ली है। वो एक गरीब घराने की जरूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता ना चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाजत से इसे घर लाना चाहता हूं। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी ना सकती थी कि मुझसे अदनान बेवफाई के मुर्तकिब होंगे। बेइख्तियार जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे रोता छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पूंछने वाला भी कोई ना था। अगले 2 दिन तक वो घर ना वापस आए तब मेरा दम घुटने लगा। नौशी दिलासे दे रही थी मगर मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। अदनान के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी। अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। मेरी हालत गैर होते देखकर नौशीन बोली, बीबी अब साहिब को फोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं। खुद पर काबू रखिए। ज्यादा गुस्सा करेंगी तो उनको खो बैठेंगी। मैं खुद उन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आएंगे तो मर जाऊंगी। फोन मिलाया। मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूं। बोलो क्या सुन लोगी? सुन लूंगी मगर फौरन आ जाइए। बेइख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन से निकली रूह दोबारा अपने ठिकाने वापस आ गई हो। अदनान अंदर आ गए। सीने से लगाकर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी जिंदगी हो। मारिया से शादी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगा। कोई इस दौलत का वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली मैंने मारिया से शर्त रखी है, जो पहला बच्चा होगा वो मेरी पहली बीवी सलमा का होगा। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को तस्कीन मिल जाएगी और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन करो मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। मारिया की हैसियत मेरे नजदीक खाक और तुम्हारी हैसियत इसकी मलिका जैसी होगी। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश हो रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था। अदनान शादी कर चुका था। मेरी मर्जी से क्या फर्क पड़ता था। मुझे ये सोचकर बड़ी वहशत हो रही थी। अगर अदनान घर से चला गया तो मैं यहां तन्हा क्यों कर सांस ले पाऊंगी। उन रातों के अंधेरे तो मुझे निगल जाएंगे। बिला आखिर मेरा शरीक जिंदगी मारिया को घर ले आया। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। समझौता करने में ही आफियत जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मारिया को ऊपर का कमरा दे दिया गया, मगर अदनान ने मुझे नजरअंदाज ना किया। मुझे पहले से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे शौहर का बच्चा मेरी गोद में आए, जिस शौहर से मैं अब भी वालहाना मोहब्बत करती थी। वो दिन भी आ गया जब मारिया अस्पताल चली गई। इस दौरान अदनान ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन मारिया अस्पताल रही अदनान घर आना भूल गए। 7 दिन तक मैं बंगले में तन्हा उनका इंतजार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो आ गए। मैं बेइख्तियार गेट की तरफ लपकी, मगर मुझे देखकर मारिया ने मुंह फेर लिया। वही मारिया जो मुझे आपा आपा कहते ना थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे अदनान की आवाज सुनाई दी, मारिया बच्चे को मुझे दो ताकि मैं उसकी बड़ी मां की गोद में दे दूं। वो मुंतजर है हफ्ते भर से। मगर मेरी सौतन ने यह कहकर जैसे तेज खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे पर इस गोद जली का साया भी ना पड़ने दूंगी। मैं सुन होकर रह गई। अदनान बेबस हो गए। मेरे पास आए और धीमी आवाज में बोले,
दरअसल बच्चे के दूध पीने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं मुन्ने को तुम्हारे पास लाता हूं। मुन्ने की पैदाइश से पहले तक अदनान ने मसावात कायम रखी थी, मगर जब से बेटा हुआ वो मेरे पास बेदिली से आधी रात के बाद कमरे में आते। कहते बच्चा सो नहीं रहा था, मैं इसे बहला रहा था। कुछ दिनों बाद मारिया माँ के घर चली गई। मैं खुश थी कि अब अदनान उसकी गैर मौजूदगी में वक्त मेरे साथ गुजारेंगे, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो दफ्तर से सीधे उधर चले जाते। कहते मुन्ने की याद सता रही थी, सोचा एक नजर देख लूं तो घर जाऊं। यूं आधी रात को घर पहुंचते। मारिया वापस आ गई। अब ये अक्सर शाम को बाहर जाते। मुझे अदनान कहते आज मुन्ने को डॉक्टर को दिखाना है, आज उसके कपड़े खरीदने हैं, आज इससे इसकी नानी से मिलाने ले जाना है। मैं इंतजार करती रह जाती और ये मारिया की मां के घर से रात का खाना खाकर ही लूटते। रफ्ता रफ्ता उन्होंने मेरे साथ झूठी मोहब्बत दिखाना भी छोड़ दी। अगर कभी मुझे बाहर ले जाते तो बार बार घड़ी देखते। कहते जो खरीदारी करनी है जल्द कर लो, घर में मारिया और मिना अकेले हैं, कहीं उनको हमारी जरूरत ना पड़ जाए। बच्चा छोटा है, अकेले मारिया ख्याल नहीं रख सकती। मिना पांव पांव चलने लगा। मैं इसे देखती तो जी करता उठा लूं, इसके नन्हे मुन्ने वजूद से अपनी गोद भर लूं। कभी भूले से उठा लेती तो सौतन इसको जरा देर बाद मेरे बाजुओं से उचक लेती। मुसलसल तन्हाई ने मुझे जहनी मरीज बना दिया। पहले तो किसी ने मेरी जहनी अबतरी पर तवज्जो ना दी, जैसे कि इस मुकम्मल फैमिली में मैं एक फालतू शय थी। मगर जब मुझ पर दौरे पड़ने लगे तो मुझे मैके भिजवा दिया। वालिदैन मेरा हाल देखकर रो पड़े। मुझे जहनी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले गए। उसने मेरा हाल सुना। अब वो अक्सर घर आता और मुझसे देर तक बातें करता। यूं दिल हल्का हो जाता। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत में बेहतरी आने लगी। तब इस डॉक्टर ने कहा कि आप अदनान को भुलाने की कोशिश करें। वो तलाक दे तो ले लें, दूसरी शादी कर लें और नई जिंदगी शुरू कर दें। यही आपके दुखों का इलाज है। मैंने कहा अदनान से तलाक नहीं लूंगी, वो खुद दे दें तो भी मुझबान से कौन शादी करेगा। अदनान से जो दर्द मिला है, अब दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद एक लिफाफा पोस्टमैन ने ला कर दिया। अदनान की तरफ से तलाकनामा था और वजह मुझे जहनी मरीज बताया गया था। वालिद साहिब ने ये कागजात डॉक्टर साहिब को जाकर दिखाए। मशवरा लिया कि मुझे किस तरह आगाह किया जाए। डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे हकीकत तस्लीम करने पर आमादा किया। समझाया कि एक शख्स पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उनकी नजर में एक अच्छा शख्स है जो उनका दोस्त है। इसकी बीवी का कुछ अरसा कब्ल इंतकाल हुआ था। 3 छोटे छोटे बच्चे ममता से महरूम हैं। उनको मां की अशद जरूरत है और बच्चों के बाप को ऐसी खातून की तलाश है जो उनके बच्चों को मां का प्यार दे सके। बाप की तरफ से इन बच्चों को पैसे की कमी नहीं, मगर मां का प्यार दौलत के बदले खरीदा नहीं जा सकता। ये वही उनको दे सकेगी जिसके अंदर खुद ममता की प्यास हो। एक दिन उन्होंने मुझे इन बच्चों से भी मिलवाया। वो बहुत प्यारे प्यारे और मासूम थे, मगर अफसुर्दा से लगे। मैंने प्यार किया तो मेरे पास दौड़े चले आए। मैंने उन्हें बेइख्तियार अपनी बाहों में भर लिया। फिर ये बच्चे अक्सर मेरे पास लाए जाने लगे। मुझे उनसे प्यार महसूस होने लगा, मगर दिल दूसरी शादी पर आमादा न होता था। सोच भी ना सकती थी कि अदनान के बदले कोई दूसरा शख्स उसकी जगह ले। वालिदैन बार बार समझाते कि वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं। माजी के साथ चिमटे रहना कम अक्लों का शेवा है। मां कहती मर्द को औरत से मोहब्बत नहीं होती, इसे घर बार संभालने वाली की जरूरत होती है। जबकि औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए लज जाती है। मुझे अम्मा की ये बातें गरां गुजरती, मगर रात दिन सोचती थी कि आखिर अदनान ने मुझे तलाक क्यों दी। शादी तो इसने कर ही ली थी, मुझे अपने नाम से तो महरूम न करता। दिमाग कहता था कि अब उसे भूल जा, मगर मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। इसे कैसे भूल सकती थी जिसके लिए मैंने पहला सिंगार किया था। उसने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था। वालिदैन देख देख कर कोड़ते थे।
और मैं इसी के ख्यालों में गुम रहती थी जो मेरी रूह में समाया हुआ था। बिला आखिर उन्हीं बच्चों ने मुझे उन सोचों से निकाला। उन्हें डॉक्टर साहब हमारे घर मुझसे मिलाने लाते थे। मैं इनके बारे में सोचने लगी थी, वो ना आते तो उदास हो जाती। डॉक्टर ने अपने पेशे का हक अदा कर दिया और मैं फिर से नई जिंदगी की तरफ लौट आई। ऐसी जिंदगी जो बेमकसद ना थी, जिसका कोई मकसद था। औरत बांझ हो तो मर्द को इख्तियार है वो दूसरी शादी कर ले या इसे तलाक के कागजात थमा दे, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन मर्द अगर बांझ हो तो औरत क्या करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वालिद साहब ने बिला आखिर एक फैसला कर लिया। उन्होंने आमिर को मेरे लिए पसंद कर लिया और मुझे अपने आंसुओं से राम किया कि मैं सर झुकाने पर मजबूर हो गई। और वो घड़ी भी आ गई जब मैं अदनान की यादों से दिल का दामन भरे आमिर की मनकूहा बन गई। इसके 3 बच्चों की मां का रूप धार लिया। इन बच्चों की मासूम बातों ने रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों में शहद घोलना शुरू कर दिया। आमिर बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने उनके बिन मां के बच्चों को सीने से लगा लिया तो वो मेरे कदमों में बैठ गए। इतने शुक्रगुजार हुए कि मैं रो दी। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने सैराब कर दिया था। वो मुझे मां समझ बैठे और मुझे भी जिंदगी के किसी मोड़ पर यह महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहां जाती हूं मेरे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं इनके बगैर अधूरी हूं और ये मेरे बगैर नामुकम्मल। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस रही थी, आमिर के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी है। अब मैं बांझ नहीं हूं और ना आमिर के बच्चे बिन मां के कहलाते हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर एक मां पोशीदा होती है जिसको बस दरियाफ्त करने की जरूरत होती है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।